Welcome back again to my YouTube channel. This is Revised Cherry, Class 3, Semester 1, English, Chapter 4, The Wright Brothers. The Wright brothers moved on from making toys to making aeroplanes. Read on to find out how. Wilbur Wright was born in 1867 and Orville Wright 4 years later. They grew up in Ohio and Iowa in the United States. From the time they were little, Wilbur and Orville loved to build toys and machines together, whether it was a piece of wood, some lengths of string, pieces of tube, old reels, or rubber wheels. Wilbur and Orville found something interesting to do with them. They made small toys that moved, spun, or bounced. The two boys got together to make amazing little gadgets, which were sources of great interest to all their friends and family. One day in 1878, their father gave them a very special gift. It was the turning point in their lives. It was a toy flying machine made of cork, bamboo, and paper. Its motor was a rubber band. The boys loved their new toy. They called it the bat and played with it all the time. When the bat broke, they made another larger bat. When Wilbur and Orville grew up, they planned their own flying machine. They thought of something that would go smoothly through the air, fly a distance, and then gently touch down. They first made many gliders, which were planes without motors. Each time they experimented with gliders, they observed them keenly, noting all the areas that needed improvement. Each model they made was better than the last. Through trial and error, their gliders got better and better. Then they built a plane with a motor. On 17th December 1903, Orville flew their plane from Kitty Hawk in North Carolina. This was a very special moment for their lives. Work was now no more a dream or a trial, but a wonderful reality. On the ground, his brother Wilbur cheered as the plane soared into the sky. The flight of this first aeroplane made history. Adapted from young Orville and Wilbur Wright, first to fly by Andrew Woods. Let me explain you the lesson. Wright brothers from Cherry, Standard 3rd. Wilbur Wright was born in 1867 and Orville Wright 4 years later. विल्बर राइट जब बॉर्न हुआ था 1867 में, उसके बाद 4 साल के बाद ऑरविल राइट बॉर्न हुए और वो दोनों
ओहायो में ग्रो हुए। दे ग्रू इन ओहायो एंड लोवा, यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए दोनों भी, यहाँ पर वो बॉर्न हुए थे। और बहुत जब छोटे थे तो उन दोनों को बहुत शौक़ था टॉयज़ बनाने का मशीन के साथ, या वो पीस ऑफ वुड हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी हो लंबी, या पीस ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब रहता है वैसा हो, या फिर रील्स, जो कैसेट्स में रील्स आते, या रबर व्हील्स जो पहिए होते हो, उन सब चीज़ों से उनको टॉयज़ बनाने का बहुत शौक़ था। और वो स्मॉल टॉयज़ बनाते थे और दे मूव्ड स्पून और बाउंस्ड। टर्न स्पून मीन्स टर्न राउंड क्विकली, ऐसा बनाते थे कि वो जल्दी से क्विकली टर्न ऑन हो जाते थे, और थोड़ा सा अगर हम उनको पुश करें तो वो क्विकली मूव्ड अवे, दूर तक जाते थे। द टू बॉयज़ गॉट टुगेदर टू मेक अमेजिंग लिटिल गैजेट्स। और बहुत अमेजिंग, बहुत सरप्राइजिंगली ये लोग टूल्स के गैजेट्स बनाते थे, टूल्स, स्मॉल टूल्स, और विच वेयर सोर्सेज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली। और उनकी फैमिली फ्रेंड्स बहुत खुश होते थे ये सब देख के कि ये लोग कितना अच्छा बनाते सब टॉयज़। एक बार 1878 में उनके डैडी ने उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट दी। इट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ की ज़िंदगी में वो बिल्कुल चेंज हो गया था। एक चीज़ दी, मशीन मेड ऑफ कॉर्क की मशीन थी, बैम्बू एंड पेपर से बनी हुई, और मोटर रबर बैंड था, इट्स मोटर रबर बैंड। द बॉयज़ लव द न्यू टॉयज़, दे कॉल्ड इट द बैट। उन्होंने उनका नाम बैट रखा था, एंड प्लेड विथ ऑल द टाइम। व्हेन द बैट ब्रोक दे मेड अनदर लार्जर बैट। जब वो टूट गया तो उन्होंने सोचा कि चलो अब दूसरा एक बैट बनाते हैं। फिर व्हेन विल्बर एंड ऑरविल ग्रू अप, वो बड़े हुए तो दे प्लान देयर ओन फ्लाइंग मशीन। उन्होंने कहा कि चलो हम खुद की मशीन बनाते हैं। फिर दे थॉट ऑफ समथिंग दैट वुड गो स्मूथली थ्रू द एयर। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बनाएंगे जो स्मूथली। फिर उन्होंने सोचा कि एक प्लेन बनाते हैं बगैर इंजन का। दे फर्स्ट मेड मैनी ग्लाइडर्स। ग्लाइडर्स मीन्स बगैर इंजन वाला प्लेन। और ईच टाइम दे एक्सपेरिमेंटेड विद ग्लाइडर्स। हमेशा हर बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ग्लाइडर्स बनाने के लिए। फिर दे ऑब्जर्व देम कीनली, गौर से देखा, नोटिंग ऑल द एरियाज दैट नीडेड इम्प्रूवमेंट। कहीं पर कुछ आवश्यकता है या नहीं, या फिर कहीं कुछ गड़बड़ है या बनाने में कुछ चूक हो गई हो, सब उन्होंने जांच पड़ताल की। ईच मॉडल दे मेड वॉज बेटर देन द लास्ट। और जो भी मॉडल उन्होंने बनाया वो बहुत बेटर था देन द लास्ट। थ्रू ट्रायल एंड एरर, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत कोशिश की, बहुत सारे मेथड ट्राई किए, और बहुत सेवरल पॉसिबिलिटीज़ से उन्होंने द ग्लाइडर्स गॉट बेटर एंड बेटर, और बहुत अच्छा बना। देन दे बिल्ट अ प्लेन विथ मोटर। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लेन बनाया मोटर के साथ। देन ऑन 17 December 1903 ऑरविल फ्लू दैट प्लेन फ्रॉम किटी हॉक इन नॉर्थ कैरोलिना। 17 दिसंबर को 1903 में ऑरविल ने प्लेन उड़ाया किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में। दिस वॉज वेरी स्पेशल मोमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट था उनके लाइफ में। फॉर देयर लाइफ्स वर्क वॉज नो मोर अ ड्रीम और अ ट्रायल बट अ वंडरफुल रियलिटी। अब उनका कोई ऐसा ड्रीम नहीं था, लेकिन वो रियलिटी हो चुका था। सच में वो लोग प्लेन बनाकर उड़ाए। एंड ऑन द ग्राउंड हिज ब्रदर विल्बर चीयर्ड एज द प्लेन सोर्ड इनटू द स्काई। और ग्राउंड पे उसका जो भाई था विल्बर, वो बहुत खुश हो रहा था, और क्विकली फ्लू टू हाई लेवल इन द स्काई। प्लेन जो है वो हाई लेवल पे उड़ा, और स्काई में बहुत अच्छे से उड़ गया ऊपर तक। द फ्लाइट ऑफ दिस फर्स्ट एरोप्लेन मेड हिस्ट्री। और ये फर्स्ट एरोप्लेन ने एक हिस्ट्री में अपना नाम किया। और ये यंग ऑरविल एंड विल्बर राइट ने बनाई, और फर्स्ट टू फ्लाई बाय एंड्रयू वुड्स। एंड्रयू वुड्स ने इसे उड़ाया। सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेसन। Thank you so much for listening and reading and also watching my video.